વહાલા વૈષ્ણવો, શું આપના મનમાં એવો વિચાર આવે છે કે આપ ઘણા લોકોને કહેવા ઈચ્છતા હો કે શ્રીનાથજીએ મારો હાથ પકડ્યો છે, તો હવે તમે બધા મારા પગ ખેંચવાનું બંધ કરો? શું આપની સાથે પણ આવું થાય છે કે આપને ઉદ્વેગ થાય છે? લૌકિક નિંદા ભગવદીઓએ શા માટે સહન કરી લેવી જોઈએ એ વિચારવા જેવું છે. કારણ કે જો આપણામાં દોષ બુદ્ધિ આવશે ને તો એક ક્ષણમાં આપણા ભગવત ભાવનો નાશ થશે. તો ભગવત ભાવનો નાશ ન થાય તેનું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. દરેકના જીવનમાં આ પરિસ્થિતિ આવતી હોય છે કે આપણે ભક્તિ માર્ગ તરફ વળીએ એટલે આપણી નિંદા લૌકિકમાં થવા માંડે. અને આપણે બધા જાણીએ છીએ અને કે જગત અને જગદીશને આપણે એક સાથે પ્રસન્ન નહીં કરી શકીએ. કેન્દ્રમાં શ્રીનાથજીને રાખવાના છે, પરંતુ આપણા ગૃહસ્થાશ્રમની બધી જ ફરજો ઈમાનદારીથી બજાવવાની છે. પછી ભલે ને કોઈ અપ્રસન્ન થાય કે પ્રસન્ન થાય એ આપણે નથી વિચારવાનું. આપણે આપણું કાર્ય ઈમાનદારીથી કરવાનું છે. અને લૌકિક નિંદા શા માટે સહન કરવી જોઈએ? જો આપણે લૌકિક નિંદા વિશે વિચાર્યા કરશું તો આપણું ચિત્ત લૌકિકમાં ચાલ્યું જશે અને પ્રભુનું વિસ્મરણ થશે. એટલે વિસ્મરણ એ પણ મૃત્યુ સમાન છે. તો આપણે જીવતા મરદા સમાન જીવીએ એના કરતાં તો પ્રભુમય જીવન જીવીએ એ ખૂબ જ જરૂરી છે. સત્સંગ અને દુસ્સંગ વચ્ચે શો તફાવત છે? એક પાતળી લકીર છે, તે આપણે ધ્યાન રાખવાની છે. આપણા ભાવો જ્યાં ખંડિત થતા હોય ત્યાંથી દૂર રહેવું અને આપણા ભગવત ભાવને પોષણ મળતું હોય તેની સાથે કનેક્શન રાખવું. એટલે કનેક્શન જેની સાથે નથી રાખ્યો એટલે સંબંધ તોડી નાખવા એવી રીતે નહીં, પરંતુ એક પ્રકારની થોડીક દૂરી બનાવી લેવાની. એટલે આજે આપણે આ બધું વિસ્તારથી સમજવાના છીએ. ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે ભૂતકાળમાં બનેલા અણબનાવો યાદ આવતા મન દુખી થઈ જાય છે. જ્યારે એવો સમય આવે ત્યારે આપણે આ વાત યાદ રાખવાની છે કે શ્રીનાથજીએ મારો હાથ પકડ્યો છે, એટલે હવે આપણે કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કરવાની નથી. અને ભગવદીઓએ લૌકિક નિંદા શા માટે સહન કરવી જોઈએ તે પણ વિચારવા જેવું છે. અને કોઈ આપણી નિંદા કરતું હોય તો આપણે ખુશ થવું જોઈએ, કારણ કે ગોકુલનાથજી કહે છે કે એ તો આપણા પાપો ધોવે છે, આપણા પાપને ધોવે છે. પાપથી બચવા માટે, પાપની નિવૃત્તિ માટે બધા કેટલું કરતા હોય છે. અને વગર કરીએ જો આપણી લૌકિક નિંદા થતી હોય અને આપણા પાપ ધોવાતા હોય તો તેમાં આપણે તો રાજી થવું જોઈએ. એટલે કોઈ આપણી લૌકિકમાં નિંદા કરે તો દુઃખી થવાના બદલે રાજી થશો કે એટલા આપના પાપનો નાશ થયો. તો ચાલો ખૂબ જ સુંદર ભાવદર્શન આપણે સમજીએ. વાલા વૈષ્ણવો, આપણો શ્રીનાથજી શું કરે ખબર છે? પ્રભુ પહેલા તો ભક્તિનો રસ ચખાડે. આપણે ભક્તિ માર્ગ તરફ વળવા માંડીએ ત્યારબાદ માયાના કર્તવ્ય પણ નિભાવવાના. એટલે એ પણ બતાવે કે તારે આ કર્તવ્ય લૌકિકના કર્તવ્ય પણ નિભાવવાના છે. અને આપણે લૌકિકમાં આસક્ત થઈ જઈએ એટલે તેનું મૂળ રૂપ પણ દર્શાવે અને પ્રપંચની વિસ્મૃતિ કરાવીને પોતાનામાં નિરોધ કરાવે છે. એવા આપણા શ્રીનાથજી છે. મેં હમણાં જ કાલિંદી બેટીજીના વચનામૃતમાં આ સાંભળ્યું. તો કઈ રીતે? એટલે પ્રભુ પહેલા ભક્તિનો રસ ચખાડે એટલે આપણે પ્રભુમય બનવા લાગીએ. ત્યાં બધું લૌકિક યાદ આવે કે ભાઈ મારું તો આ ઘરને સાચવવાનું કર્તવ્ય છે, એટલે આપણે એ નિભાવવા લાગીએ. તો આપણે એક માયાના આવરણમાં આવી જઈએ અને લૌકિકમાં આસક્ત થઈ જઈએ. ત્યારે પ્રભુ આપણને ફરી સચેત કરે છે કે આપણું મૂળ રૂપ શું છે અને આ સંસારનું મૂળ રૂપ શું છે. પ્રપંચની વિસ્મૃતિ આપણા શ્રીનાથજી કરાવે છે અને પ્રભુમાં નિરોધ કરાવે છે. એટલે લૌકિકમાં ઘણી વખત આપણે સંસારમાં ખૂબ જ આસક્ત બની જઈએ ને એટલે કોઈ એવો બનાવ બને કે આપણને સામે વ્યક્તિથી દુઃખ લાગે. એ બધા પ્રભુના ખેલ છે, કારણ કે આપણે માયાના આવરણમાં એવા આવી ગયા, લૌકિકમાં એવા આસક્ત થઈ ગયા, સાંસારિક સંબંધોને જ પ્રાધાન્ય આપવા લાગ્યા.
પ્રભુને ભૂલી ગયા એટલે પ્રભુ આવા ખેલ કરે છે. આપણા શ્રીનાથજી કહે છે કે હું જ તારો પરિવાર છું, હું જ તારું સર્વસ્વ છું, તું મને ભૂલી જા તો કેમ ચાલે. એટલે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ તો કેન્દ્રમાં શ્રીનાથજીને રાખીને કરવાનું છે, એ જરા પણ ભૂલવાનું નથી. કારણ કે શ્રીનાથજી કહે છે કે મેં તારો હાથ પકડ્યો છે તો હવે તને ભય શાનો છે? તું શા માટે લૌકિકમાં અપેક્ષા રાખે છે કે કોઈ મારી સરાહના કરે કે કોઈ મારી વેલ્યુ કરે? તું એવી અપેક્ષા શા માટે રાખે છે? હમણાં જ કાલિંદી બેટીજીના વચનામૃતમાં મેં સાંભળ્યું કે એક વૈષ્ણવને એમના ઘરના સભ્યોએ રાત્રે 12 વાગ્યે સરપ્રાઈઝ પાર્ટી આપી, કારણ કે બીજે દિવસે એમનો જન્મદિવસ હતો. એટલે કાલિંદી બેટીજીએ કહ્યું કે એ જોઈને મને એવો આનંદ થયો, એમ થયું કે કેવું બધાએ યાદ રાખ્યું. એટલે કાલિંદી બેટીજીએ કહ્યું કે એક ક્ષણ માટે મને એવું થયું કે કાશ મારો પરિવાર પણ આ રીતે મને સરપ્રાઈઝ આપે. એટલે એવું વિચાર આવતા જ અંદરથી અંતરાત્મામાંથી એક અવાજ આવ્યો. પ્રભુ તરત જ નિર્દેશ કરે છે કે હું તારો પરિવાર છું, તું કેમ એ ભૂલી જાય છે? એટલે માયાના આવરણમાં આપણે જ્યારે ફસાવા લાગીએ છીએ કે માયાના આવરણમાં આવી જઈએ છીએ તો પ્રભુ એક ઝટકે આપણને તે છોડાવે છે, કારણ કે આપણે શ્રીનાથજીને ખૂબ જ પ્રિય છીએ. એટલે પ્રભુ આવા ખેલ કરે છે, કારણ કે ખેલ મેં મેલ હૈ. એટલે આપણે એ યાદ જ રાખવાનું છે કે કિયો સબ ગોપાલ હી કો હોય. પ્રભુ સર્વ કરવા સમર્થ છે. લૌકિકમાં ઉદ્વેગ એ પ્રભુની કૃપાનું દાન છે, એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. અને એ આપણે ભૂલવાનું નથી કે તું કોણ છે અને અહીં શા માટે આવ્યો છે. આપણે પ્રભુના શ્રીઅંગની સૃષ્ટિ છીએ, એટલે પ્રભુની સેવા સ્મરણ સત્સંગ કરવાની આપણી ફરજ છે. પ્રભુએ આપણને એ માટે જ ભૂતલ પર મોકલ્યા છે. તો આપણે એ મૂળ કાર્ય જ ભૂલી જઈએ તો પ્રભુને ક્યાંથી ગમે? વ્રજ ભક્તોનું ચિંતન કરીએ તો કૃષ્ણ નામ જપતે શ્રવણ સુન્યો રિયાલી, ભૂલી રી ભવન હો તો બાવરી ભૈરી. એટલે ઘર કામ કરતા કરતા પણ કેન્દ્રમાં શ્રીનાથજીને રાખીને ચિંતન પ્રભુનું કરવાનું. એમાં તો કોઈ રોકટોક ન હોય, એમાં તો કોઈ કંઈ કહેવાનું જ ન હોય. આપણે બહાના બતાવીએ કે મને અનુકૂળતા નથી એટલે સાવ બહાના જ હોય એવું નથી હોતું. બધું મનનું ધાર્યું થાય એવું પણ જરૂરી નથી, પરંતુ વચલો રસ્તો કાઢી શકાય છે. વિવેક ધૈર્ય આશ્રયનો એટલે જ તો આપણા શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે. કરે કરાવે શ્રીનાથજી આ એક વાક્ય આપણા આત્મપટલ પર ધારણ થઈ જાય, આપણા હૃદયમાં કોતરાઈ જાય તો પછી કંઈ જ વાંધો ન આવે. તો આપણને કોઈ તરફથી દુઃખ ન લાગે, કોઈ તરફથી અપેક્ષા ન રહે કે આ મારી સાથે આમ કરે. કારણ કે પ્રભુ સર્વ કરવા સમર્થ છે અને હરિ કરે સો ભલી. પ્રભુ આપણું હિત જ વિચારે છે, પણ આપણને સમજતા વાર લાગે છે. અને કેન્દ્રમાં કોણ છે એ આપણે સતત યાદ રાખવાનું છે. કેન્દ્રમાં આપણા શ્રીનાથજી છે. ઈમાં મારું મન છે. ઈ એટલે શ્રીનાથજીમાં મારું મન છે. અને તજમન હરિવિમુખન કો સંગ, એટલે આપણા ભાવ ખંડિત થાય એવું લાગે તો તે વ્યક્તિથી દૂરી બનાવી લેવાની અને પ્રભુને કહેવાનું છે કે નાચ્યો બહોત ગોપાલ, અબ મેં નાચ્યો બહોત ગોપાલ. દીનતાથી પ્રભુને વિનંતી કરવાની છે કે હે પ્રભુ, હવે મને આ સંસારાસક્તિ છોડાવો અને આપના ચરણારવિંદમાં દ્રઢાશ્રય આપો. શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદનો દ્રઢાશ્રય કરીશું એટલે બધું સુગમ થશે. કારણ કે આપણા પ્રભુ કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ છે. અને આપણે સદા આનંદમાં રહીએ. આપણે આનંદમાં રહીએ તો આપણા પ્રભુ આનંદમાં રહે. અને સર્વાત્મ ભાવ રાખીએ એટલે દરેકના હૃદયમાં આપણા શ્યામ સુંદર આપણા શ્રીનાથજી બિરાજે છે. એટલે કોઈ પ્રત્યે પણ અભાવ લાવ્યા વગર, દોષ બુદ્ધિ રાખ્યા વિના ચિત્ત પ્રભુમાં પરોવીને આ સુંદર મનુષ્ય દેહ પ્રભુએ આપ્યો છે તો તેને માણીએ. વાલા વૈષ્ણવો, શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીએ 20મા શિક્ષાપત્રમાં આ બધું ખૂબ જ સુંદર રીતે સમજાવ્યું છે.
એટલે હવે આપણે એનું ભાવ દર્શન કરીએ. પ્રભુ નંદ કુમારો મેં સ્વામિની વૃષભાનુજા કૃતાર્થોહમ કૃતાર્થોહમ ન સંશય. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. અત્યારે આપણે શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી રચિત શિક્ષાપત્રનું રસ દર્શન કરી રહ્યા છીએ. આજે આપણે શિક્ષાપત્ર 20મું જોઈશું, સત્સંગ એવં દુસંગ. विंशत बड़े शिक्षापत्र 20 विंशतितम शिक्षापत्र में शरणागति सो प्रथम भय दोष की चिंता न करनी और शरणागति पीछे तो सावधानता सो रहनो, निवेदन को अनुसंधान करनो, भगवत सेवा गुणगान आदि करने, थोड़े जानवे वारे के वचन ते पुष्टि मार्ग ते बुद्धि चलित न करनी, सर्वदा सत्संग सो रहनो, अपने श्री आचार्य जी के ही वाक्य ते निष्ठा राखनी, पुष्टि मार्गीय भगवदीय सो मिली के रहनो, यह मार्ग ते विरुद्ध होय तिनके संग रहित होय के रहनो, यह निरूपण है. समाचारा वगत्यैव संतोषो जनितो महान, सदोषे अपि हरिर्जीवे अनुग्रहम कुरुते स्वतः. शब्दार्थ: समाचार को जानी के ही बड़ो संतोष भयो, काहे ते जो दोष रहित जीव ऊपर हो हरि भगवान आपते ही अनुग्रह करत है. टीका: अब श्री हरिराय जी कहत है, जो तुम्हारो पत्र आयो सो वांची के मन में संतोष भयो, काहे ते जो यद्यपि गृहभंग को बड़ो दुख હતો सो तुम्हारो दुख निवृत्त भयो, तुम्हारे हृदय में संतोष भयो, ता करी हम हो मन में संतोष पाए. आगे जो शिक्षा है सो मन में धारण करियो. हरि जो भगवान सो कैसे है, यद्यपि जीव के दोष को जानत है तो वो अपनी ओर ते जीव पर अनुग्रह करत है, जीव की ओर नहीं देखत है. शिशुपाल श्री कृष्ण की निंदा ही करतो ऐसो दुष्ट हतो, ताहु को गति देनी इंद्र ने जलवृष्टि करी द्वेष कियो, तो हु वापे प्रसन्न भये. ऐसे श्री कृष्ण के सदा कृपा ही करत है. ऐसे श्री कृष्ण है सदा कृपा ही करत है, अपने प्रमेय बलते यह जीव पर अनुग्रह करत है. ताते श्री कृष्ण को भजन स्मरण आश्रय सर्वदा कर्तव्य है. प्रमेय बलमा साध्य किम साध्यम तदा भवेत्, अतः प्रथम दोषाणां चिंता नैव विधीयताम्. शब्दार्थ: प्रमेय बल को प्राप्त होय तब असाध्य कहा होय है, तासो प्रथम के दोषन की चिंता नहीं कर्तव्य है. टीका: यह पुष्टि मार्ग में तो प्रमेय बल ही ते सर्व कार्य सिद्ध होय है, जीव के साधन थे कछु कार्य सिद्ध होत नहीं, और जीव कहाँ ताई साधन करेगो, या के साधन ते दोष दूरी हु नहीं हो सकत, ताते वृथा चिंता क्यों करनी. सो श्री महाप्रभु जी कहे हैं, जीवाहा स्वभाव तो दुष्टा, जीव स्वभाव सो दुष्ट है. जीव तो स्वभाव ते दुष्ट है, परंतु अपने अज्ञान करी उत्तम मानत है, तासो जीव के साधन ते कछु नहीं सिद्ध होए, प्रभु प्रमेय बल ते सिद्ध करेंगे. ऐसे विचारी चिंता नहीं करनी. संजात भगवत भाव मपथ्यमिव सद्गुणम लोक निंदा भवम दुखम न धर्तव्यम ही मानसे. शब्दार्थ: आछे गुण वाले औषध को अपथ्य जैसे तैसे भगवत भाव उत्पन्न भयो, तामे लोक की निंदा सो दुख होय सो मन में नाही धरनो. टीका: लौकिक चिंता ते भगवत भाव को नाश होय, ताको दृष्टांत कहत है, जैसे सुंदर औषध खाए ताके ऊपर अपथ्य करे, यानी खारो खाटो खाए तो बिना पथ्य औषध को गुण जाए और रोग बढ़े, तैसे मन में भगवत भाव होय, स्मरण भजन करे सो सुंदर औषध की नाई है, सो लौकिक चिंता आदि कुपथ्य करे तो भगवत भाव उल्टो जाए. ताही ते श्री आचार्य जी महाप्रभु
नवरत्न ग्रंथ में चिंता निवृत्ति करने के लिए कहे हैं। चिंता कापी न कार्या निवेदितात्मभिः कदापि कदापि निवेदन किए हैं आत्म संबंधी जिनने ऐसे वैष्णव कछु चिंता कोई दिन हूँ नहीं करे। जा जीव ने निवेदन कियो है तीन को तो निश्चय ही चिंता नहीं कर्तव्य है, और जो लौकिक वारे निंदा करत है सो महा दुख रूप है। सो अपने मन में नहीं धरनी काहे ते, जो लौकिक में अनेक भांति के जीव हैं, तीन को कहियो न करिए तो निंदा करे ताको सहन ही उचित है। जैसे श्री भागवत में निरूपण है, जो श्री गोपीजन ने लोकवेद छोड़ी के प्रभु को भजन कियो है, तब गोप ने और माता पिता ने निंदा करी सो धारण न करे। तब श्री कृष्ण प्रसन्न होय के रास लीला में फलदान कियो, ताते भगवदीय को लौकिक निंदा सहन करनी। अग्रे तु सावधानत्वं विधेयं सर्वथा पुनः दुसंगादि महादोषा नाशयन्त्येव तत्क्षणात्। शब्दार्थ, आगे निश्चय फेरी सावधानपनो करनो काहे ते, जो दुसंगादि बड़े दोष हैं सो जब मिले ताही क्षण भगवत भाव को नाश करे। दुसंग आदि बड़े दोष हैं सो जब मिले ताही क्षण भगवत भाव को नाश करे। टीका, आगे सर्वथा सावधान रहियो काहे ते, जो दुसंग दोष महाबाधक है। सो जन्म जन्म ते भगवत भाव जोरी के एक ठोर कियो होय, सो एक क्षण में ही तत्काल दुसंग ते सगरे भाव को नाश होय। श्री भागवत आदि पुराण में कहे हैं, जो बड़े बड़े भगवदीय दुसंग ते गिरे हैं, ताते तुम दुसंग ते निश्चय क्षण क्षण में सावधान रहियो। असज्जन कृता निंदा तुष्टये सत्व विनिश्चयात् यतस्तेषां न रोचन्ते संत एव हि सर्वथा। शब्दार्थ, असत पुरुष ने करी ऐसी जो निंदा सो धैर्य के विशेष निश्चय के कारण सो संतोष अर्थ है। कहे ते, जो जासो असत पुरुषन को निश्चय सत्पुरुष प्रिय नहीं लागत है, तथा सत्पुरुष असत पुरुष की वाणी में प्रीति नहीं राखत है। टीका, असज्जन अवैष्णव तथा अन्य मार्गीय तथा बहिर्मुख निंदा करे, जो सुनी के मन में दुख मति पाइयो, मन में प्रसन्न यानी संतुष्ट रहियो। जो यह प्रभु सत्य ही कहते हैं, मैं तो निश्चय ही दोषवान ही हूँ, या भांति मन में ज्ञान करी विचारी निंदा को सहन करनी, सो याते जो संत जन है उन दुष्टन की वाणी में सर्वथा रुचि राखत नहीं। जैसे प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने कैसो दुख दियो और निंदा करी, सो प्रहलाद जी ने सही लियो। तामे प्रहलाद जी को कछु बिगड़ियो नहीं, हिरण्यकशिपु को प्रभु ने मारियो। ताते जो संत है सो दुष्टन की वाणी में मन सर्वथा राखत नहीं। मार्ग विश्वास रहिताः पूर्व दोषे कदृष्टयः यतो नामेव हि हरेः सर्वदोष निवर्तकम्। शब्दार्थ, जासो यानी असज्जन पुष्टि मार्ग में विश्वास रहित है और पूर्वते ही दोष दृष्टि वाले हैं, तासो इनकी वाणी में रुचि न राखे तथा इनको सत्पुरुष न रुचे और हरि को नाम है सो ही सर्वदोष की निवृत्ति करवे वारो है। टीका, वह दुष्ट कैसे है जो यह पुष्टि मार्ग में विश्वास रहित है, सो काहे ते, जो पूर्व जन्म ते दोषी देखत है। पुष्टि मार्ग को प्रकार सगरे जगत में प्रसिद्ध है, सो देखियत नहीं, तासो मार्ग में शरण आए हैं, तो हु प्रथम की दुष्टता है, ताते दोषी देखत है, अपनी कुटिलता नहीं छोड़त है। काहे ते, जो वह असुर है, ताते मार्ग में विश्वास नहीं है, सदा दुष्ट है, ताते दुष्टता प्रकट करत है। ऐसे जाननो और भगवान को नाम साधारण में हु ऐसो है, जाको नाम लेत मात्र सर्व दोष दूरी होत है। सो षष्ठ स्कंध श्री भागवत में कहे हैं, अज्ञानाद अथवा ज्ञानात दुत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तनमदाम पुंसाम देहे देधो यथा नलः
सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघहरम विदुः नामोच्चारण महात्म्यम हरेः पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत। अज्ञान अथवा ज्ञान उत्तम श्लोक भगवान के नाम को कीर्तन अग्नि काष्ठ को जैसे झारे तैसे पुरुष के पाप को झारे हैं। संकेत में लियो, परिहास में लियो, गीत आलाप पुराण अर्थ और अवज्ञा सुलियो। ऐसो जो भगवान नाम को ग्रहण सो समग्र पाप को हरे हैं, ऐसे ऋषि लोग जाने हैं। हे पुत्र, दूत हरि के नाम को महात्म्य देखो। जा करी के ही अजामिल हो मृत्यु के पाश सो छूटी गयो। और अष्टम स्कंध में वाक्य है, मंत्र तस्तंत्र तश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। शुक्राचार्य श्री वामन जी को कहे हैं, मंत्र सो तंत्र सो देश काल योग्य वस्तु सो जो न्यून होय सो सर्व आपके नाम कीर्तन ही पूर्ण करत है। और ते सौभाग्य मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम स्मरित स्मारयन्ति हरे नाम कलियुगे। जो यह कलयुग में हरि के नाम को स्मरण करे है तथा स्मरण करावे है, सो हे राजन मनुष्य में भाग्य सहित है तथा कृतार्थ है, यह निश्चय है। द्वादश स्कंध में सुखदेव जी को वाक्य है, कलेर दोष निधे राजन नस्ति ये को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंध कीर्तन सो ही मुक्त बंध परम व्रजेत। दोष के निधि रूप कलयुग को एक बड़ो गुण है। जो श्री कृष्ण के कीर्तन से ही मुक्त हो गए हैं, बंध जिनके ऐसे मनुष्य पर को प्राप्त होय। षष्ठम स्कंद में विष्णुदूत को वाक्य है, ब्रह्महा पितृहा गोग्नो मातृहाचार्यहा गवान स्वादः पुलकस्को वापि शुद्धयेरन यस्य कीर्तनात्। ब्रह्म हत्या करवे वारो, पितृ हत्या करवे वारो, गो हत्या करवे वारो, मातृ हत्या करवे वारो, आचार्य वेदोक्त यज्ञ करवे वारो अथवा आर्य यानी अपने से बड़े की हत्या करवे वारो, पापी होय, चांडाल होय, नीच जाति में उत्पन्न भयो होय, सोहु जिनके कीर्तन सो शुद्ध होय इत्यादि ठोर ठोर नाम को महात्म्य है। तासो सहज में मुख्य में भगवान नाम अनजाने निकसी जाए तो वह नाम सर्वदोष दूरी करत है। तदपि श्रीमदाचार्य वदनाम्बु जानी ही श्रुतम तत्प्रकाशित मार्गस्य सर्व संपादन क्षमम। शब्दार्थ, सो भगवान नाम हो श्रीमदाचार्य जी के मुखारविंद सो निकस्यो अष्टाक्षर मंत्र है। सो श्री आचार्य जी ने प्रकाश कियो। ऐसो जो भक्ति मार्ग है, तीन को सर्व संपादन करने में योग्यता वारो है। टीका, यद्यपि सर्व भगवान नाम सर्व गुण दाता है, संसार दुख से छुड़ावे है, तो होता में यह अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम रूप नाम श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के वदन कमल ते निकस्यो है। सो पुष्टि मार्गीय स्थिति करावत है। काहे ते जो यह पुष्टि मार्ग हो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने प्रकट कियो है। तासो जा जीव को श्री आचार्य जी द्वारा नाम प्राप्त भयो है, तीन को सर्व सिद्धि होगी। सो श्री गुसाई जी विज्ञप्ति में कहे हैं, यदुक्तम तात चरणे ही श्री कृष्ण शरणम मम तत एवास्ति निश्चिंत्य में ही के पारलौकिके। जो चरण श्री महाप्रभु जी ने श्री कृष्ण शरणम मम यह अष्टाक्षर मंत्र कहो है, तासो ही यह लोक और परलोक संबंधी सर्व में निश्चिंतता है। इत्यादि वचन के भाव को अष्टाक्षर मंत्र को जब वैष्णव करे, यह सर्व करवे में समर्थ है। ततोपि ब्रह्म संबंध सर्वदोष निवर्तकः निर्दोषानंद सेवापि दोषो भाव प्रसादिका।
शब्दार्थ तासो ही भगवान नाम सो ही परम संबंध है, सो सर्व दोष को निवृत्त करने वालो है। और निर्दोष आनंद रूप भगवान की सेवा हो निर्दोष आनंद रूप है और दोष के अभाव को साधवे वाली है। टीका ऊपर कहे जो नाम ते सर्व दोष को नाश होता है। जो जा जीव को ब्रह्म संबंध होय तीन के सर्व दोष को नाश होय, यह तो उचित ही है। कहते जो सर्व दोष निवृत्तिकरण अर्थ जो प्रभु ने ब्रह्म संबंध की आज्ञा दीनी है, सो सिद्धांत रहस्य में श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे हैं ब्रह्म संबंध करणात सर्वेषां देह जीवयोः। सर्वदोष निवृत्ति ही दोषाः पंचविधाः स्मृताः। ब्रह्म संबंध किए ते सर्व के देह जीव के सर्व दोष की निवृत्ति निश्चय होत है। सो दोष 5 प्रकार के हैं इत्यादि वचन सो जाननो जो श्री आचार्य जी द्वारा जा जीव को ब्रह्म संबंध भयो तीन के सकल दोष दूरी भय। कहते जो भगवान निर्दोष है सो जीव हो निर्दोष होय सेवा करे तो अंगीकार होय। ताते श्री महाप्रभु जी अपने जीवन को ब्रह्म संबंध कराए निर्दोष करी के पाछे सेवा में लगाए। सो भगवत सेवा कैसी है जहाँ में दोष ही नहीं, निर्दोष आनंद रूप है, सगरे दोष प्रतिबंध को नाश करने वाली है। तहाँ कोई शंका करे जो ब्रह्म संबंध ते ही सर्व दोष को नाश भयो तो फेरी सेवा ते कौन सा दोष को नाश होय। ताको समाधान यह है जो देह जीव के सगरे दोष तो ब्रह्म संबंध ते निवृत्त भय। फेरी प्रभु की लीला प्राप्ति में प्रतिबंध रूप जो दोष है सो सेवा ते दूरी होय, तब स्वरूपानंद को अनुभव होय। यह भाव विचारी ब्रह्म संबंध और भगवत सेवा करे। गुणगानम तो सर्वेषां दोषाणां विनिवारकम्। गुणगाने ज्ञान मार्गा दुत्कर्षः प्रभुणोदितः। गुणगान तो सर्व दोषन को निवृत्त करने वालो है। तासो ज्ञान मार्ग सो गुणगान में उत्कर्ष प्रभु ने कहियो है। टीका जो भगवत गुणगान सगरे दोष को निवारक है सो गुणगान दो ही प्रकार को है, एक पुष्टि मार्गीय तथा एक मर्यादा मार्गीय। सो दो के भेद कहत है। पुष्टि मार्गीय गुणगान जैसे व्रज भक्त गुणगान करत है, श्री ठाकुर जी के संयोग में सेवा दर्शन करत है और श्री ठाकुर जी गोचारण को पधारत है, तब विरह करी के वेणु गीत युगल गीत गाय संध्या पर्यंत काल बितावत है। तैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के पुष्टि मार्ग में विरह करी गुणगान विप्रयोग की भावना है, संयोग विप्रयोग दो रस को अनुभव है और मर्यादा मार्ग ज्ञान मार्ग में केवल गुणगान ही करत है। ज्ञानम सकल दोषाणाम दाहकम परिकीर्तितम तथापि न प्रभोः प्रादुर्भावे यत् प्रतिबंधकम तन्निवर्तयितुं शक्तमतो न्यूनम निरूपितम ततः स्वाचार्य सानिध्यम क्षणाद्भाव प्रदायकम। शब्दार्थ ज्ञान को सकल दोषन को भस्म करवे वारो कहियो है। तो हूँ प्रभु के प्रादुर्भाव में जो प्रतिबंधक है तीन को निवृत्त करवे में समर्थ नहीं है, तासो न्यून कहियो है। ताते अपने श्री आचार्य जी को सानिध्य ही क्षण में भाव को देते। टीका ज्ञान मार्ग को गुणगान कैसो है जो ताकरी के संसार के सकल दोष भस्म हो जात है, पाछे सदा निर्विघ्न होय तो मोक्ष की प्राप्ति होय, परंतु प्रभु प्रकट होय के दर्शन न देही। ताते ज्ञान मार्ग को गुणगान है, सो भक्ति मार्ग में प्रतिबंध रूप है। सो कहते जो प्रभु को दर्शन नहीं, लीला को अनुभव नहीं, स्वरूपानंद को अनुभव नहीं है, ताते ज्ञान है। सो भक्ति मार्ग में प्रतिबंध कही जाननो, सो ज्ञान तुम मते करियो, अपने भगवत सेवा ही मुख्य है यह जाननो। कहते जो यह ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग ते न्यून है, यह श्री आचार्य जी महाप्रभु जी संन्यास निर्णय में कहे हैं। ज्ञानार्थम उत्तरागम च सिद्धिर जन्म शते ही
परम सो जन्म लो ज्ञान मार्ग को साधन सिद्ध होय, प्रतिबंध न होय, तब ब्रह्मा के लोक में जाए, पाछे ब्रह्मा को लय होय, तब वाको मोक्ष होय। ताते ज्ञान मार्गीय जीव भक्ति ते न्यारो है। तासो तुम पुष्टि मार्ग की रीति सो तत्पर रहियो। श्री आचार्य जी को यह पुष्टि मार्ग कैसो है? जो एक क्षण श्री आचार्य जी को सानिध्य होय तो भगवत भाव को दान करे, स्वरूपानंद को अनुभव होय। ताते सर्वोपरि फल रूप सेवा पुष्टि मार्ग में है, जहाँ में भगवत रस को अनुभव होय। यह भाव विचारी के श्री आचार्य जी महाप्रभु जी सेवा की रीति प्रकट करी है। ताभांति सेवा करियो तब ही श्री आचार्य जी महाप्रभु भाव दान करेंगे। यह निश्चय सर्वोपरि सिद्धांत है। तदि दृशा अमार्ति तापानाम क्रमादेवेह संभवात् तत उत्तर भावस्य भावनम वहनी रूपतः। शब्दार्थ श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा, आरती और ताप को क्रमशः ही यह पुष्टि मार्ग में संभव यानी उत्पत्ति है। तासो विरहात्मक को भावन यानी भावना विप्रयोगार्थी सो है। टीका पुष्टि मार्ग में ज्यों ज्यों मन लगाए के भगवत सेवा करे, त्यों त्यों श्री कृष्ण के दर्शन को ताप क्रम ते बढ़े। या भांति जब अधिक ताप होय ता करी के सगळो दोष दूर करी हो जाए, तब दैन्य सिद्ध होय। ता पाछे जब उत्तर भाव हृदय में सिद्ध होय, तब ब्रज भक्तन के भाव की भावना करे। जाको मानसी सेवा कहत है, सो सर्वोपरि ब्रज भक्तन को भाव परिक्रमा है। सो भाव हृदय में होय, तब जानिए जो श्री आचार्य जी महाप्रभु हृदय में पधारे भावाग्नि रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं। क्षणेन दोष संघस्य नाशकम सर्वथा मतम एवं भूते स्थिते मार्गे नूनम येषाम भाग्यतः अविश्वासस्तेषां न गतिः कापि विद्यते अतः स्वयं श्रुतः यद्धा भाग्याद्रुद्धि समागतम तदेव हि दृढ़ं स्थाप्यं सर्वथा जीवनावधि नाल्पज्ञ वचनान्नाचाल्याः बुद्धिरापात सुंदरात्। शब्दार्थ ऊपर श्लोक में कहियो ऐसो विप्रयोग अग्नि को अनुभव, विरह अग्नि को भावना दोषण के समूह को निश्चय नाश करने वाली है। ऐसो यह पुष्टि मार्ग है। तामे जिनको अभाग्य है, तिनको अविश्वास होय, तासो तिनको काहू गति नहीं है, तासो अपने सुनियो अथवा भाग्य सो हृदय में आयो। ऐसो जो विप्रयोग अग्नि को भावन सो ही जीवन पर्यंत दृढ़ स्थापनो। थोड़े जानिवे वाले के वचन ऊपर से सुंदर दिखते होए, तासो बुद्धि चलित नहीं करनी। भावार्थ रंजक हो भाव रूप अग्नि हृदय में होय तो एक क्षण में सगरे दोष को सर्वथा नाश करे। या भांति पुष्टि मार्ग सर्वोपरि है। ऐसो ब्रज भक्तन के भावात्मक यह पुष्टि मार्ग है। भग भाग्यहीनन को विश्वास न होय, ताते अविश्वास ही पुष्टि मार्ग के फल सिद्धि नहीं होय। जहाँ जीव को यह पुष्टि मार्ग में अविश्वास है, ताको कहू गति नहीं है। को जीव होय, अविश्वास सबको बाधक है।
जहाँ जीव को यह पुष्टि मार्ग में अविश्वास है, ताको कहू गति नहीं है। कोई जीव होय अविश्वास सबको, कोई जीव होय अविश्वास सबको बाधक है। सो अविश्वास कैसो होय? एक तो अपने मन में स्वकल्पित विचार उठे, जो यह पुष्टि मार्ग में अचूमों को सिद्ध नहीं दिसत। दूसरों को ज्ञान मार्गीय, कर्म मार्गीय भाव विरुद्ध। सो अविश्वास कैसो होय? एक तो अपने मन में स्वकल्पित विचार उठे, जो यह पुष्टि मार्ग में कछुमों को सीधी नहीं दिसत। दूसरे को ज्ञान मार्गीय, कर्म मार्गीय भगवद विरुद्ध कर कहे सो सुने। अन्य मार्गीय यह पुष्टि मार्ग को देखी नहीं सकत है, ताते उनको संगहु बाधक है। उनके मुक्ति मार्ग की निंदा सुनी के अविश्वास होय। तीसरो पुष्टि मार्ग को फल सर्वोपरि है। सौभाग्य में न होय, जीव ही भीतर प्रवाही होय, मर्यादा मार्गीय होय, पुष्टि न होय, तो यह फल कहाते पावे? वाको अविश्वास होय। चौथो हृदय में अनेक भांति के लौकिक वैदिक के विषय के अंग, विषय के तरंग उठे, तो विश्वास छूटी जाए वैसु और ही क्रियाकरण लागे। पांचवो काहू बहिर्मुख के समागम ते दुसंग ते अविश्वास होय। ऐसे 5 प्रकार के कारण ते अविश्वास होय। ताको पुष्टि मार्गीय, ताको पुष्टि मार्गीय फल सर्वथा न होय। ऊपर कहे इत्यादि दोष ते अविश्वास हृदय में दृढ़ हो जाए। सो अविश्वास सर्वथा जीव को बाधक ही है। जैसे जल अग्नि को नाश करे है, तैसे दुसंग दोष भाव को नाश करे। अल्प ज्ञान वाले जीव के वचन चातुर्य ते बुद्धि जलायमान संग दुसंग दोष भाव को नाश करे। अल्प ज्ञान वाले जीव के वचन चातुर्य ते बुद्धि जलायमान न करनी। अल्पज्ञ जीव अज्ञान करी निंदा दुर्वचन यानी मर्यादा छोड़ी के बोले, ताते अज्ञानी के संगवाद सर्वथा नहीं कर्तव्य है। फरी एक बार अल्प ज्ञान वाले जीव के वचन चातुर्य ते बुद्धि चलायमान न करनी। अल्पज्ञ जीव अज्ञान करी निंदा दुर्वचन मर्यादा छोड़ी के बोले, ताते अज्ञानी के संग वाद सर्वथा नहीं कर्तव्य है। सत्व निश्चयतः संगः साधको नहीं संशयात्, यत्र वे विपरीतैव कृतिस्तत्र भ्रमः कथम। विवेक धैर्य आदि के निश्चय सो संग है, सो सर्व सिद्ध करवे वारो है। संशय सो नहीं है, और जहाँ विपरीत ही कृति है तहाँ भ्रम कैसे होय। टीका, ताते यह निश्चय मन में जाननो, जो या जीव को सत्संग ही भगवत धर्म को साधक है। संशय नहीं। सो श्री भागवत प्रथम स्कंद में शौनक को वाक्य है, तुलया मलवेनापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। भगवत भक्त के संग के क्षण बरोबर स्वर्ग और मोक्ष तुले नहीं है, तहाँ मनुष्य की दीनी आशीष को तो कहा कहनो। और एकादश स्कंद में भगवत वाक्य है, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय हस्तपत्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यशाश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः यथा वरुन्धे सत्संगः
सर्वसंगापहो हि माम। हे उद्धव, मोको योग वश नाही करे हैं, नाही सांख्य धर्म, नाही स्वाध्याय तप त्याग, नहीं इष्टापूर्त यानी को आत्म मठ आदि, नहीं दक्षिणा व्रत यज्ञ वेद तीर्थ नियम यम को वश नहीं करे हैं। जैसे सर्वसंग को मिटाइवे वारो सत्संग मोको वश करे हैं इत्यादि वचन ते जाननो। जो जीव को सत्संग ही बड़ो साधक है, ताते यह पुष्टि मार्ग में वैष्णव निश्चय ही सत्संग करे। और पुष्टि मार्ग ते जिनकी विपरीत कृति होय तामे वैष्णव को भ्रम कहते होय, ताते पुष्टि मार्ग ते विपरीत कृति वारे को संग सर्वथा न करे। तत्र भ्रांतः परम मूढ़ास्तत्संगः खलु बाधकः अतः सत्संग हितस्तिष्ठे सर्वत्र सर्वदा। शब्दार्थ, तामे जो भ्रांत है सो अत्यंत मूढ़ है, इनको संग निश्चय बाधक है, तासो सत्संग सहित सर्व जगह सदा रहे। टीका, जो जीव भ्रांत है या पुष्टि मार्ग में विश्वास करी रहित है सो महामूढ़ अज्ञानी है, तासो खल यानी दुष्ट को संग महाबाधक है। ताते पुष्टि मार्गीय वैष्णव जहाँ जाए तहाँ सब ठौर सदा पुष्टि मार्गीय भगवदीय के संग ही स्थित रहे, तभी दुसंग ते बचे, ताते सर्वथा सत्संग में रहे। सो नवरत्न ग्रंथ में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहे हैं, निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशे जनहि। निश्चय तादृशीय वैष्णव जन के संग निवेदन को स्मरण करना। यह निवेदन को स्मरण सदा सर्वदा तादृशीय सो मिली के करे, ताते सत्संग है सो भगवत वृद्धि करता होय वेसु पुष्टि मार्गीय भगवदीय को नित्य कर्तव्य ही है। सेवम कुर्वन् सदाचारी धर्म मार्ग स्थितो अपि च अविरुद्ध वच्चो वक्ता या विरुद्ध कृति प्रिय। सेवा करवे वारो सदाचार वारो और धर्म मार्ग में रह्यो होय तो हूँ अविरुद्ध वचन कहिवे वारो तथा अविरुद्ध कृति को प्रिय करी के रहवे वारो होय। टीका, पुष्टि मार्गीय वैष्णव श्री आचार्य जी द्वारा निवेदन पाए के पुष्टि मार्ग की रीति सो आचार सहित भगवत सेवा करे। आचार है सो वैष्णव को प्रथम धर्म है, ताते आचार विचार पूर्वक खासा सेवकी छुयो सखड़ी अनसखड़ी प्रसादी जूठन प्रभृति को ज्ञान राखे, धर्म में तत्पर रहे, अपने पुष्टि मार्ग धर्म में रहे और पापाचरण न करे, सुंदर शिक्षा दे ताको मानी ले, अविरुद्ध क्रिया मार्ग की रीति की सेवा को ही मन में प्रिय ही जाने। स्वाचार्य मात्र वाक्ये क निष्ठः सतत भावुकः तदीय जन संसृष्टः सर्वसंग विवर्जितः। शब्दार्थ, अपने श्री आचार्य जी के वचन निबंध श्री सुबोधिनी जी और षोडश ग्रंथ आदि कन में निष्ठा वारे निरंतर भाव वारे भगवदीय सो मिलवे वारे और दूसरे सर्वसंगते वर्जित होए। टीका, एक अपने श्री वल्लभाचार्य जी के वचन पे निष्ठा राखे, इन्होंने किए श्री सुबोधिनी जी निबंध आदि के तन्मार्गीय ग्रंथ को कहे सुने, तामे जो क्रिया भाव कहे हैं ताही में मन लगाए के ताही भांति रहनो, और जो भगवदीय श्री आचार्य जी के वचन अनुसार चलत है, श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के वचन में जिनकी पूर्ण निष्ठा है ऐसे इनको संग करे और सर्व को त्याग करे। जो ऐसे भगवदीय मिले तो संग करे, नहीं तो सर्व संग छोड़ी के भगवत सेवा स्मरण मार्ग रीति प्रमाणे करे, परंतु अन्य को संग सर्वथा न करे या भांति वैष्णव रहे तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कृपा ते पुष्टि मार्ग को फल पावे। इति श्री हरिराय जी कृतम विशुद्धितम शिक्षा पत्र श्री गोपेश्वर जी कृत ब्रजभाषा टीका समेतम। आ रीते અહીં શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી રચિત શિક્ષાપત્ર 20મું સત્સંગ એવં દુસંગ અહીં વિરામ લે છે। શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આપણે સત્સંગ અને દુસંગનો તફાવત સમજી શક્યા અને આપણે જીવનમાં આને ઉતારીએ અને આપણે આચરણમાં આ રીતે લઈએ તો આપણે પણ કૃતાર્થ થઈએ અને સત્સંગ દુસંગના ભેદને સમજીને દુસંગથી બચીને રહીએ। વૈષ્ણવો, આ શિક્ષાપત્ર છે ને 41 શિક્ષાપત્ર એ એવા 41 વીણેલા મોતી છે, એ મોતીઓની માલા છે કે જે ખૂબ જ અમૂલ્ય છે, પરંતુ હજુ આપણે તેના અમૂલ્યપણાને
સમજ્યા નથી. બાકી આપણા મનની બધી મૂંઝવણોનો ઉકેલ શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીએ અહીં શિક્ષાપત્રમાં દર્શાવ્યો છે. આપણા મનમાં કોઈ પણ મૂંઝવણ હોય, આપ ગમે ત્યારે ટ્રાય કરી લેજો, તેનો જવાબ આપને શિક્ષાપત્રમાંથી 100% મળશે. કારણ કે શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીએ આપણા બધા વૈષ્ણવો ઉપર અસીમ કૃપા કરીને આપણા મનની મૂંઝવણોને આ શિક્ષાપત્ર દ્વારા દૂર કરી છે. આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ.